And the battle for the state of Haryana is underway. Polling booths opened at 7 a.m. this morning, and there's a 36.69% voter turnout until 1 p.m. in the elections. The BJP is eyeing a hat-trick, and the Congress is aiming to make its way back into power in the state after being ousted by its voters in 2014, a result of the Modi wave and the anti-incumbency. But today, too, anti-incumbency plays a big role, with it being a bit of a touch-and-go situation for the BJP. But let's talk about some of the key contests. Ladwa in Kurukshetra is the battleground for the new Chief Minister, Nayab Singh Saini. It's a test for the man who took over the reins from Manohar Lal Khattar. He's a prominent OBC face and is battling against the Congress's Meva Singh and the INLD's Sapna Barshami. कैसे देखते हैं? निर्णायक दिन है, फैसला सुना रही जनता, क्या फैसला आने वाला है? देखिए, लोकतंत्र का पर्व है। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि 100% मतदान करें और इस लोकतंत्र की मजबूती में, राष्ट्र की मजबूती, प्रदेश की मजबूती के अंदर हम सब ने बाहर निकल करके अपने परिवार सहित मतदान करना चाहिए। और मैं आपको हरियाणा प्रदेश के लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हरियाणा के विकास के लिए आप लोग कमल के फूल को चुने। कमल का फूल ही विकास कर सकता है। कांग्रेस पार्टी हाथ का पंजा बिल्कुल भी विकास नहीं कर सकता। हाथ के पंजे में बहुत दर्द छिपा हुआ है। जब चुनाव शुरू हुआ था, जो लग रहा था, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि 60-65 सीटें आ रही हैं। चुनाव होते होते क्या आपको लगता है, आकलन क्या है आपका, कांग्रेस कहाँ खड़ी है आज? नहीं, कांग्रेस का कहीं खाता नहीं खुल रहा। आप देख लेना, कांग्रेस का कहीं खाता नहीं खुल रहा। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय कर लिया है। Gari Sampla Kiloi in Rohtak is witnessing a battle between former Chief Minister Bhupendra Singh Hooda, BJP's Manju Hooda and the Aam Aadmi Party's Praveen Guskhani. It's a stronghold for the former Chief Minister who has won the seat in the last 3 elections. And from political bigwigs to sports stars, Julana will see a very interesting battle between the former wrestler Vinesh Phogat, who was given a ticket by the Congress party hours after joining the party, and the BJP's captain Yogesh Bairagi. The Aam Aadmi Party too has fielded a sportsperson, former WWE star Kavita Dalal. मेरे लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और हम आए हैं सुबह सुबह अपने घर पे मतदान करने के लिए। पूरे देशवासियों से, पूरे हरियाणा वासियों से मैं आग्रह करती हूँ कि मतदान जरूर करने जाएं। ये आपका अधिकार है, ये आपकी ताकत है, इसको आपको जाना चाहिए और एक उत्सव के रूप में आपको मनाना चाहिए। Gurugram too is seeing a battle between the Congress's Mohit Grover, the BJP's Mukesh Sharma and the Aam Aadmi Party's Nishant Anand. Uchana Kalan, Elenabad and Rewari are some of the other high-profile contests for today, and over 2 crore voters will decide who forms the next government. Results will be declared on 8th October. आज प्रजातंत्र का उत्सव है और अच्छा मतदान हो और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में, इसका हमें पूरा विश्वास है। और पूर्ण मेहनत और मशक्कत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्ष सेवा भाव के आधार पर कार्य किया है और भविष्य में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करेगी। संविधान बचाने का भी चुनाव है, ये संविधान बचाने का भी चुनाव है। हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने का भी चुनाव है। हरियाणा के किसान के, गरीब के सम्मान को बचाने का भी ये चुनाव है, मगर संविधान को बचाने का भी चुनाव है। ये सही बात है। People are rejecting both the BJP and also the independents that have been sponsored by the BJP. There are a lot of independents and also small parties like INLD and JJP which have been proven to be B team of BJP in the court of the people. How confident are you of winning these elections? People are more confident, but we are also fully confident. हरियाणा में आज जिस तरह के ट्रेंड आ रहे हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश से कोई मुकाबला नज़र नहीं आ रहा। आप किसी विधानसभा क्षेत्र से आप थोड़ा सा चेक खुद करके देखें, एक तरफा 36 बिरादरी हरियाणा का हर वर्ग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। Now, the internal rift within Haryana Congress has been the talking point throughout the campaigns, and the BJP feels that it will cost them dearly this elections. Listen in.
कैसे देखते हैं, क्योंकि आज चुनाव हैं और एक तरह से शैलजा को लेके जो एक स्थिति चल रही थी कांग्रेस में वो सामने सामने पूरी तरह से आई है। ये सच है कि कांग्रेस पार्टी के पास केवल डेंटेड एंड टेंटेड लीडरशिप ही है, जिनका चेहरा देखते ही खर्ची व पर्ची के दिन याद आते हैं, जिनका चेहरा देखते ही नौकरियों की नीलामी याद आती है, जिनका चेहरा देखते ही जीजा व जीजी की भू माफिया के साथ मिलकर गरीब किसानों की जमीन को लूटने की बात याद आती है, जिनका चेहरा देखते ही मिर्चीपुर गोहाना सहित दलितों पर हुए घोर अत्याचार याद आते हैं। और आज भी हरियाणा की कांग्रेस जातिवाद के चुंगल में पूरी तरह फंस चुकी है और डेंटेड एंड टेंटेड लीडरशिप को आगे करके चुनाव लड़ा जा रहा है। जनता इसका करारा जवाब देगी और गरीबों के लिए काम करने वाली, हरियाणा को विकास की राह पर ले जाने वाली, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद वाली डबल इंजन की सरकार बनेगी। Now, there have also been some fun moments during today's elections. Now, for example, a BJP MP, Naveen Jindal, went to the polling station in Kurukshetra on a horse to cast his vote for the elections, and a groom, Sunil Kumar, from Pipli village in Kurukshetra district, cast his vote ahead of getting married, showcasing his commitment to democracy. मैम जैसे मैं सभी को बोलता हूँ, मेरे देशवासियों को, मेरे जितने भी हैं, मतलब सभी भाइयों को, बहनों को, माता को, मतलब वोट डालना सबसे ज़रूरी होता है। और मैं ये कहता हूँ कि मेरा कहना ये है, ये मेरा मानना है कि अपना वोट कभी भी वेस्ट ना करें, ठीक है। और अपना वोट कीमती से कीमती समय भी, मतलब उसको भी मतलब थोड़ा साइड में रख के अपना वोट ज़रूर डालें। अभी जा रहे हैं शादी करने, अभी जा रहे हैं, पहले वोटिंग डालना ज़रूरी था, तो इसीलिए वोट वेस्ट ना हो जाए, तो इसलिए वोट डाल के जा रहा हूँ।